آدھا برز ہے۔ MCN اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں ہوں ذکی صدیقی۔ پیش ہیں آج کی اہم خبریں۔ جائکواڑی اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے افسران نے بڑھایا میونسپل ایڈمنسٹریٹر کا درد سر۔ پانی کے بقایا بل کے 26 کروڑ روپے کی ادائیگی کے لیے شہریان کا پانی سپلائی مرحلہ وار بند کرنے کا دیا انتباہ۔ تعلقہ سلوڑ کے لہا کھیڑی گرام پنچایت میں پیش آیا بدعنوانی کا انوکھا کھیل۔ مہلوک شخص کو EGS مزدور بتا کر اس کے نام پر اٹھا لیا گیا بوگس بل۔ سماجی کارکن کا الزام، جانچ کا مطالبہ۔ آخر ہم نے ایسا کون سا گناہ کیا جو ہمیں جہنم جیسی تکالیف پہنچائی جا رہی ہیں؟ پڑے گاؤں کے ساکنان کا AMC انتظامیہ سے سوال۔ پروسیسنگ سینٹر کے سامنے مردہ جانوروں کے اجسام ٹھکانے لگانے کے لیے شمشان بنانے سے عوام ناراض۔ اور بھارت کی انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم کے لیے شاہجہاں پور کا ہونہار کھلاڑی شیخ عادل منتخب۔ عزیز و اقارب میں خوشی کی لہر۔ دولت آباد میں کیا گیا عوامی استقبال۔ بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا کی ٹیموں کے درمیان ہوگا مقابلہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ گزشتہ 2 سال کا بقایا پانی کا بل 26 کروڑ 32 لاکھ روپے AMC انتظامیہ فوری ادا کرے، ورنہ 21 فروری سے مرحلہ وار شہر کا واٹر سپلائی بند کیا جائے گا۔ یہ اطلاع جائکواڑی کے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈویژنل انجینئر دیپک کمار ڈونگرے نے MCN کو دی ہے۔ ناظرین، یوں تو مختلف تکنیکی وجوہات کے سبب شہر میں پانی سپلائی میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں اور پانی کا بھرپور ذخیرہ ہونے کے باوجود شہریان کو اطمینان بخش مقدار میں پانی نہیں مل پا رہا ہے۔ گزشتہ کچھ سالوں سے میونسپل کارپوریشن انتظامیہ شدید مالی بحران کا شکار تھا۔ اب جبکہ حالات قابو میں آتے دکھائی دے رہے ہیں، مگر روز ایک نیا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے جو میونسپل ایڈمنسٹریٹر کی منصوبہ بندی کو متاثر کر دیتا ہے۔ گزشتہ دنوں بجلی کا بل ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا جسے بات چیت کے ذریعے حل کر لیا گیا۔ گزشتہ 5 سالوں میں شہر میں کروائے گئے مختلف ترقیاتی کاموں کے بل بھی باقی تھے، جس کی وجہ سے کانٹریکٹرز نے نئے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ گزشتہ 2 سالوں میں ان کے بیشتر بقایا بل ادا کر دیے جا چکے ہیں، مگر اب ایک نیا مسئلہ درپیش ہے۔ جائکواڑی ڈپارٹمنٹ کے افسران نے میونسپل کارپوریشن کو نوٹس بھجوائی ہے کہ گزشتہ 2 سالوں کا پانی کا بقایا بل 26 کروڑ 34 لاکھ روپے فوری ادا کیا جائے۔ بصورت دیگر AMC کو شہریان کے لیے دیا جانے والا پانی 21 فروری سے مرحلہ وار بند کر دیا جائے گا۔ حالانکہ جائکواڑی محکمہ ایک سرکاری ادارہ ہے اور پانی کے بقایا بل کی ادائیگی کے لیے متعلقہ شعبے کی جانب سے شہریان کی بنیادی ضرورت پر اس طرح کی ضرب لگانا کہاں تک درست ہے، جس کی وجہ سے شہریان میں سخت بے چینی پائی جا رہی ہے اور وہ عوامی نمائندوں اور حکومت سے مطالبہ کرنے لگے ہیں کہ اس معاملے میں مداخلت کر کے جائکواڑی ڈپارٹمنٹ کے افسران کو اس طرح کی کوئی بھی کارروائی کرنے سے باز رکھیں۔ मी दीपक कुमार डोंगरे, उपविभागीय अभियंता, जायकवाडी पाटबंधारे उपविभाग औरंगाबाद। जायकवाडी प्रकल्पामधून औरंगाबाद महानगरपालिकेला जो पाणी पुरवठा होत आहे आमचा पाटबंधारे विभागाकडून, त्या संदर्भात 26.32 कोटी रुपयाचं थकीत बिल आहे 2 वर्षापासून, मागील 2 वर्षापासून, आणि 2 महिन्यापासून सतत पाठपुरावा सुरू आहे, परंतु बिलाचा कोणत्याही प्रकारचा भरणा झालेला नाही। त्यामुळे महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम 1976 मधील कलम 49 आणि 97चा वापर करून जो सप्लाय आहे शहराला येणारा तो 21/2 पासून टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात येत आहे। تعلقہ سلوڑ کے لہا کھیڑی کی گرام پنچایت نے روزگار ضمانت اسکیم کے تحت ایک مہلوک شخص کو کام پر حاضر دکھلا کر اس کے نام پر رقم اٹھا لینے کی بدعنوانی کا الزام ایک سماجی کارکن نے عائد کیا ہے اور اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق لہا کھیڑی گرام پنچایت نے روزگار ضمانت اسکیم کے تحت باندھ پر شجرکاری و پودے لگانے کے کاموں کے تحت سیدھے 8 ماہ قبل فوت ہو چکے ایک شخص کو کام پر مزدور دکھا کر اس کے نام سے پیسے اٹھا لیے اور رقم کی خرد برد کی ہے۔ اس طرح کا الزام گاؤں ہی کے ساکن ایک سماجی کارکن پرکاش کوتک راؤ ساکھڑے نے لگایا ہے اور اس معاملے کی تحقیقات اور خاطی بدعنوان افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ لہا کھیڑی گرام پنچایت کے ذریعے مذکورہ 185 باندھوں پر شجرکاری کے درمیان
साल 2021 के जून जुलाई में 12 दिन के लिए मज़कूरा मुतवफ़ी को काम पर दिखलाकर उसकी मजदूरी की रकम उठा ली गई थी। प्रकाश साखड़े ने इस तरह की शिकायत BDO, सब डिविजनल ऑफिसर, तहसीलदार, पुलिस थाना व दीगर से की है। जून 2021 व जुलै 2021 मध्ये विठ्ठल लक्ष्मण सपकाळ यांनी लेहाखेडी येथील गट क्रमांक 185 मध्ये वृक्ष लागवड करण्यासाठी मजुरी केली व एकूण 2,976 रुपये मजुरी त्यांना मिळाली असे मनरेगाच्या हजेरी मास्टरमध्ये दर्शवलेले आहे। मात्र 10/10/2020 मध्येच विठ्ठल लक्ष्मण सपकाळ यांचा मृत्यू झालेला आहे। ज्या व्यक्तीचा मृत्यू 8 महिन्यापूर्वी झालेला आहे अशा मृत व्यक्तीला कामावर रोजगार सेवक यांनी कामावर हजर दाखविले। विशेष म्हणजे गट क्रमांक 185 हा विठ्ठल लक्ष्मण सपकाळ यांच्या मालकीचा नाही, शिवाय ज्यांच्या मालकीचा तो आहे त्यांनी कधीच फळबाग लागवडीसाठी अर्जही केलेला नाही व मजुराच्या हजेरी मास्टरवर सरपंच यांची देखील स्वाक्षरी असते। सरपंच आणि रोजगार सेवक यांनी संगनमत करून हा भ्रष्टाचार केलेला आहे। ह्या सर्व प्रकारची चौकशी शासकीय नियमानुसार गुन्हा दाखल करावा व्हावा अशी माझी शासनाला विनंती आहे। शिव जयंती के उत्सव को खिदमत खल्क का मोड़ देते हुए अजंता व बाजार सावंगी में अतिया खून कैंप मुनक़िद किए गए। अजंता में 50 और बाजार सावंगी में 52 अफराद ने खून का अतिया किया और शिवाजी महाराज को खिराज अक़ीदत पेश किया। नाजरीन, इन दिनों जिला भर शिव जयंती की तकरीबात की सरगर्मियां उरूज पर हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर महज उत्सव और जश्न ही का एहतमाम न करते हुए अजंता गांव में इस मुनासिबत से यहां के राम मंदिर में उत्सव समिति की जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप, जिसका इफ्तिताह अजंता पुलिस थाने के माविन इंस्पेक्टर अजीत विस्पुते के हाथों किया गया। बाद अज़ां शिवाजी महाराज की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए। इस कैंप में 50 अफराद ने अपने खून का अतिया दिया। कैंप को कामयाबी से हमकिनार करने में औरंगाबाद ब्लड बैंक के डॉक्टर पाटोदे, डॉक्टर सोमनाथ आढ़ाव, डॉक्टर विजय सोनोने और डॉक्टर जिया व दीगर ने अहम रोल अदा किया। इसी तरह बाजार सावंगी में भी गांव वालों और नारायण महाराज प्रतिष्ठान की जानिब से सै रोज़ा महोत्सव तकरीबात का एहतमाम जारी है। इसी बीच यहाँ भी मुनक़िदा ब्लड कैंप में 22 नौजवानों व दीगर अफराद ने खून का अतिया जमा करवाया। छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे की रस्म नकाब कशाई और शिव जयंती के सबब क्रांति चौक से जाने वाले रास्ते 2 दिन तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद किए जा रहे हैं। इस खुसूस में एक सर्कुलर ट्रैफिक ब्रांच की जानिब से आज जारी किया गया। ट्रैफिक ब्रांच के ACP सुरेश वानखेड़े की जानिब से जारी करदा सर्कुलर के मुताबिक आज रात 9 बजे से 12 बजे तक, इसी तरह 19 फरवरी की सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक सिलीखाना से क्रांति चौक और गोपाल टी से क्रांति चौक तक जाने वाले दोनों ही रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद किए जा रहे हैं। इसके अलावा क्रांति चौक फ्लाईओवर के दोनों जानिब के सर्विस रोड पर भी गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद रहेगी। ये बात शहरियान नोट कर लें। इन रास्तों के लिए जो डाइवर्जन दिया गया है उसके मुताबिक गोपाल टी हाउस से संत एकनाथ रंग मंदिर, कालडा कॉर्नर और अमरप्रीत चौक रास्ते से व्हीकल सवार आ जा सकते हैं। इसी तरह सिलीखाना चौक से सावरकर चौक इस रास्ते से जाने वाले व्हीकल सवार सतीश मोटर्स, इसी तरह शिवाजी हाई स्कूल की सड़क आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि क्रांति चौक फ्लाईओवर के दोनों ही रास्ते ट्रैफिक के लिए खुले रहेंगे, मगर ज़रूरत पड़ने पर उसमें भी रद्दोबदल किया जा सकता है। कोरोना के हालात और स्कूल बंदी के सबब पिछले 2 साल से तलबा का गैर मामूली तालीमी नुकसान हुआ है। अब जबकि स्कूल खोले गए हैं, ताहम ताल्लुका पैठन के दरेगांव में ज़िला परिषद स्कूल के असातिज़ा अब भी फ़र्ज शनासी का सबूत देने तैयार नहीं हैं और स्कूल में देरी से आना और मनमाने ढंग से स्कूल चलाना उनका मामूल बना हुआ है। इस ज़िमन में पिछले 4-5 रोज से MCN के नुमाइंदे ने मुसलसिल यहाँ का जायजा लिया कि रोज़ाना मस्कुरा स्कूल में असातिज़ा की हाज़िरी कितनी होती है, स्कूल कितने बजे शुरू किया जाता है। तो ये बात साफ हो गई कि स्कूल के कुछ असातिज़ा 11 बजे स्कूल आते हैं
और कुछ दोपहर ही में घर चले जाते हैं, जिससे गुमान होता है कि शायद इन असातिज़ा के लिए औकात की पाबंदी की कोई अहमियत नहीं है। इन लेट लतीफ़ मुअल्लिमीन से बाज़ पुरस करने वाला भी शायद कोई नहीं है। नतीजतन कोरोना हालात में पहले ही तालीम का नुकसान उठा चुके तलबा का मज़ीद तालीमी नुकसान करके उनकी ज़िंदगियों का अहम तरीन वक्त बर्बाद हो रहा है, जिस पर तलबा के सरपरस्त सख्त नाराज़ व मुश्तइल हैं। इन लोगों को अब ये अंदाज़ा करना भी मुश्किल हो गया है कि आखिर स्कूल शुरू व ख़त्म होने के औक़ात कार क्या हैं। सरपरस्त हजरात के सामने ये भी एक सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर इस राम भरोसे कारोबार का रोना कहाँ रोया जाए। ज़िला परिषद के अरबाब मजाज से मुतालबा है कि वो इस जानिब फौरी तवज्जो दें और जांच के बाद मुनासिब कार्रवाई की जाए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से पड़ेगांव के इलाके में कायम प्रोसेसिंग सेंटर के सामने जानवरों की शमशान भूमि की तामीर का काम जारी था, जिसे मकामी साकिनान ने रुकवा दिया। उनका कहना है कि सारी जहन्नम जैसी तकालीफ सिर्फ पड़ेगांव के साकिनीन ही को क्यों दी जा रही हैं। वाज़ेह रहे कि जानवरों के मुर्दा अजसाम को ठिकाने लगाने की गर्ज से एएमसी इंतज़ामिया ने पड़ेगांव कचरा डिपो के सामने गट नंबर 10 पर शमशान भूमि तामीर करने का मंसूबा बनाया है, जिसके लिए इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता महीने सिंधु चौहान नामी बिल्डर को इस काम का वर्क ऑर्डर जारी किया है और 4-5 दिन कबल सिंधु चौहान ने यहाँ शमशान भूमि के तामीरी काम का आगाज़ किया, जिसकी इलाके के साकिनान ने शदीद मुखालिफत की और काम रुकवा दिया। उन लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये काम शिव रास्ते पर और खानगी ज़मीन पर किया जा रहा है, जिसके बाद वहाँ काम कर रहे लेबर्स ने काम रोक दिया और वापस चले गए। वहाँ के साकिनान का कहना है कि ग्लोरी सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट में उन लोगों ने सिर्फ ये सोचकर लाखों रुपये मालियत के मकानात ख़रीदे कि न सिर्फ यहाँ की हवा खालिस है बल्कि यहाँ के कुदरती मनाजिर भी दिलकश हैं, लेकिन कचरा डिपो के सबब यहाँ की फ़िज़ा आलूदा हो चुकी है और चारों तरफ बदबू फैल रही है, जिसके सबब उन लोगों की सेहत को ख़तरा लाहक है और यहाँ कायम करदा प्रोसेसिंग सेंटर व स्लाटर हाउस के सबब उनकी कीमती ज़मीनों की कीमत कौड़ी मोल हो चुकी है। इस पर सितम ये कि अब इंतज़ामिया यहाँ मुर्दा जानवरों के अजसाम को ठिकाने लगाने के लिए शमशान भूमि तामीर करवा रहा है। उन लोगों ने इंतज़ामिया से सवाल किया कि उन लोगों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो उन्हें जहन्नुम जैसी अजियतें यहाँ पहुँचाई जा रही हैं। उन लोगों ने MCN को बताया कि वो इस ज़िमन में म्युनिसिपल अफसरान से मुलाकात करेंगे ताकि उनके मसाइल हल करवाए जा सकें। मला आत्ताच माहिती मिळाली की इथं असा जनावरांचा इथं कत्तलखाना म्हणजे स्मशानभूमी तयार करण्यात येत आहे। का बरं यांना त्यांचं मन भरलं नाही का महानगरपालिकेचं? तर आमचं आता एक म्हणणं असं आहे, इथं जर हा स्मशानभूमी झाली तर आम्हाला इथं आमरण उपोषणाला बसल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही। आणि आम्ही आमरण उपोषणाला बसणार जोपर्यंत प्रकल्प हटवले जात नाही तोपर्यंत आमचं मेलो तरी चालेल, पण आमच्या मुलाबाळांना यांना पुढे भविष्यामध्ये त्रास होणार नाही। हा हे मसनभूमी आहे का काय, हे झालं नाही पाहिजे, बंद केलं पाहिजे, इथं काहीतरी सोय करा, दुसरी रस्ताही पाहिजे आम्हाला। मानसिक त्रास होऊन लागला याच्यामध्ये आणि हे पुन्हा काहीतरी परत नवीन प्रकरण हे काय जनावरांचं काय मशानभूमी तयार करायचं हे जे ठरवलेलं आहे हे शक्य नाही आहे, हे आम्ही होऊ देणार नाही आहे। आम्ही गोरगरीब लोकांनी आम्ही पैसा गुंतवणूक करून इथे हे घरं घेतलेले आहेत आणि आज याच्यामुळे ह्या कचरा डेपोमुळे आणि ह्या कत्तलखान्यामुळे आमच्या जे घरांच्या आज किमती येत नाही आहे, त्याच्यामुळे आज कोणी सुद्धा घरं घ्यायला तयार नाही आहेत। आज करोडो रुपये टाकून लोकांचे घरं विक्री होत नाही आहे, कोणी इथं बांधून सुद्धा राहू शकत नाही आहे। इतका त्रास होत आहे, आमचा वाली कोण, आम्हाला न्याय कोण देणार आहे? अब यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बना रहे, जो भी शहर के आवारा कुत्ते जो भी जानवर मरेंगे उनको लेके आके यहाँ पे शमशान में करेंगे। ये अभी मेरी भी 4800 स्क्वायर फीट के छोटे छोटे प्लॉट है। ये मैं NRE है, 58 साल का हो रहा हूँ। ये मेरा रिटायरमेंट का प्लान था। अब ये गार्बेज की वजह से, शमशान भूमि की वजह से ये सब हमारा अटक गया। अब ये एज में और ये परेशानी हम कैसा उठाएंगे? अभी हम कलेक्टर ऑफिस साहब के पास जाएंगे और अपने एप्लीकेशन देंगे कि भाई हमारा तो ये रिटायरमेंट का प्लान था, कचरा डिपो की वजह से वो तो कोलैप्स हो गया। अभी ये पूरा शमशान भूमि बना रहे, मरे हुए जानवरों को लेके आके यहाँ पे डंप कर रहे, ये कौन सी बात है सर? आता मेलेल्या जनावरांचा आणखीन त्यात भर करत आहे की इथं ती स्मशानभूमी तयार करत आहे
आमचं म्हणणं आहे की महानगरपालिकेला एवढा काय या भावसिंगपुरा पडेगाव या मिटमिटा परिसराचा राग आहे की ते सगळे जे प्रकल्प आहे ज्याच्यापासून नागरिकांना त्रास होईल हे प्रकल्प सगळे भावसिंगपुरातच आणण्याचा त्यांनी काय अशी काही मानसिकता तयार केलेली. ह्या गोष्टीला ह्या नागरिकांचा सगळ्यांचा विरोध आहे. आम्ही कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हा इथं स्मशानभूमी होऊन देणार नाही. आणि ही स्मशानभूमी जिथं होत आहे ती महानगरपालिकेची जागाच नाही आहे. शिवरस्त्यामध्ये महानगरपालिका जर असं काम करत असेल तर ती नागरिकांच्या काय बांधकाम परमिशन देते, म्हणजे त्याची कशी शहानिशा करते. ही खाजगी जागा आहे आणि त्याला लागून शिवरस्ता आहे आणि त्या रस्त्यामध्ये हे स्मशानभूमी उभी करत आहे. त्या संबंधित जे काटकर यांना मी विचारलं का तुम्ही महानगरपालिकेच्या टाउन प्लॅनिंगची परवानगी घेतली का. ते म्हणे नाही, म्हणे आम्हाला काय परवानगी घ्यायची, आम्ही महानगरपालिका आहे म्हणे, आम्हाला सगळ्या परवानग्या राहतात. तेव्हाच आम्ही बांधकाम चालू केलं. आता बाजूच्या शेतकऱ्याला विचारलं त्याच्या मोजणी नकाशा आहे आणि त्यांच्या बाजूला शिवरस्ता दाखवलेला आहे. त्या शिवरस्त्यात हे काम चालू आहे. तरी माझी आयुक्त साहेबांना विनंती आहे की तुम्ही जरी असा अन्नागोंदी कारभार करू नका. शाहजहाँपुर के नौजवान खिलाड़ी शेख आदिल शेख मुनीर को भारतीय इंटरनेशनल टेनिस क्रिकेट टीम में मुंतखब किया गया है. उन्हें ऑलराउंडर खिलाड़ी की हैसियत से चुना गया. इस मौके पर आदिल का चार जानिब इस्तकबाल किया जा रहा है. आया रहे कि आइंदा दिनों 23 व 27 फरवरी को नेपाल के शहर पाखरा में टेनिस क्रिकेट के ये मुकाबले मुनक़िद होंगे, जिनके लिए शेख आदिल का सिलेक्शन किया गया है. इन मुकाबलों में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल व दीगर ममालिक की टीमें शामिल होंगी. शेख आदिल को टीम में चुने जाने पर दौलताबाद में उनका शानदार इस्तकबाल किया गया. इस मौके पर नायब सरपंच मुन्नी बाजी, शाहजहाँपुर के नायब सरपंच यूसुफ पटेल, पंचायत समिति के साबिक मेंबर और सभापति सरजीराव चौहान, मेंबर सैयद जिलानी, ग्राम पंचायत मेंबरान सैयद शेरू, जहांगीर पठान, ओबीसी सेल के मगरबी हल्के के सदर गणेश जाधव, शेख मुनीर, कल्याण कुंजे, रंजीत गायकवाड़ और दीगर कसीर तादाद नामवर अफराद व शायकीन क्रिकेट और शेख आदिल के हमनवा मौजूद थे. दौलताबाद व अब्दी मंडी के फार्म हाउस, होटल व रिजॉर्ट मालिकान को महसूल शोबे ने इंतबाह दिए हैं कि 2 यौम के अरसे में टैक्स अदा कर दें, वरना उनकी मज़कूरा मिल्कियतें सील कर दी जाएंगी. ज़राए के मुताबिक ये नोटिस और अहकाम ज़िला कलेक्टर की हिदायत पर सब डिविजनल ऑफिसर और एडिशनल तहसीलदार की रहनुमाई में शोबे महसूल की जानिब से देते हुए बाज़ाब्ता मज़कूरा इलाक़ों में माइक के ज़रिए ऐलान किया गया और इंतबाह दिया गया. इन टैक्सेस में मुताल्लिक़ा मिल्कियतों के गैर ज़रई अराज़ी यानी NA के टैक्स व दीगर टैक्सेस शामिल हैं. इंतबाह के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ में तमाम मिल्कियत मालिकान वो कारोबारी टैक्स अदा कर दें. बसूरत दीगर उनके फार्म हाउस, होटल, रिजोर्ट वो दीगर मिल्कियतें सील कर दी जाएंगी. बताया जाता है कि अब तक सिर्फ 8 मालिकान ने टैक्स अदा किया है, जबकि इससे पहले भी इस ताल्लुक़ से मज़कूरा शोबे की जानिब से नोटिस जारी की गई थी. ये मालूमात इलाके के तलाटी SM मुड़े ने दी है. लवचे, अब्दी मंडी, दौलताबाद, माळेवाडा व परिसरातील सर्व संबंधित अनधिकृत फार्म हाऊस धारक, रिसॉर्ट व हॉटेल धारक तसेच इतर अनधिकृत अकृषिक वापरधारक यांना माननीय जिल्हाधिकारी साहेब औरंगाबाद यांच्या निर्देशानुसार माननीय उपविभागीय अधिकारी साहेब व माननीय अप्पर तहसीलदार साहेब औरंगाबाद यांचे मार्गदर्शनाखाली सदर अनधिकृत फार्म हाऊस धारक, रिसॉर्ट व हॉटेल धारक व इतर अनधिकृत अकृषिक वापरधारक यांना सूचित करण्यात येते की आपणाकडे अनधिकृत अकृषिक कराची येणे शासकीय थकबाकी असून ती भरणा करण्याबाबत आपणास वेळोवेळी तोंडी व समक्ष भेटून व लेखी नोटीस देऊनही आपण येणे शासकीय अकृषिक कर भरणा शासन खाती न केल्याने आपले फार्म हाऊस, रिसॉर्ट, हॉटेल हे 2 दिवसाचे आत येणे रक्कम भरणा न केल्यास आपले फार्म हाऊस सील करण्यात येऊन नियमानुसार कडक कार्रवाई करण्यात येईल. ताल्लुका वैजापुर के पोखरी के ज़िला परिषद स्कूल के तलबा व तालिबात में स्कूली यूनिफॉर्म की तकसीम अमल में आई. यूनिफॉर्म की तकसीम समग्र शिक्षा अभियान के तहत की गई,
जिसके तहत 172 और स्कूली इंतज़ामिया समिति की जानिब से 105 तलबा में यूनिफॉर्म तकसीम किए गए। इस मौके पर ग्राम पंचायत के मेंबर शिवाजी जाधव ने भी यूनिफॉर्म पर लगने वाली टाई अपने खर्च से तकसीम की। इस तरह कहा जा रहा है कि अब इस गांव पोखरी के इस स्कूल का चेहरा मोहरा बदलने की शुरुआत हो गई है और स्कूल इंटरनेशनल मेयार की जानिब रवां है। स्कूल का मेयार तालीम भी रूब तरक्की है। इस तरह का इजहार तमानियत गांव के साकिनान ने किया है। इस मौके पर मुनक़िद तकरीब में राष्ट्रवादी कांग्रेस के बाला साहब भोंसले, सरपंच अंकुश ठुबे, स्कूली कमेटी के सदर व नायब सदर विद तरतीब गणेश मालोदे व अशोक ठुबे, नायब सरपंच ज्ञानेश्वर ठुबे, स्कूल के सदर मुदर्रिस अंबादास काले, कैलाश ठुबे और तमाम असातिज़ा व ग्राम पंचायत मेंबरान और गाँव के साकिनान मौजूद थे। नाजरीन, कहा जाता है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। ठीक इसी के मज़दाक़ मैकेनिकल इंजीनियर के पेशे से मुंसलिक एक नौजवान ने अपनी मोटरसाइकिल का रास्ते पर पेट्रोल ख़त्म हो जाने से हुई परेशानी से सबक लेकर सीधे सीधे पेट्रोल के साथ ही बैटरी पर चलने वाली एक मोटरसाइकिल ही तैयार कर डाली। नाजरीन, इन दिनों फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने की गर्ज से हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है, मगर हमारे शहर में चार्जिंग स्टेशंस का फुकदान होने के सबब कई शहरियान इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि अगर सफ़र के दौरान बैटरी ख़त्म हो जाए या उसमें कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो क्या किया जा सकता है। औरंगाबाद का शेख अफरोज़ नामी नौजवान जो पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है, अपनी अहलिया के साथ रात के वक्त अपनी टू व्हीलर गाड़ी पर सवार होकर दवाखाना जा रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। करीब में कोई पेट्रोल पंप भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में बड़ी दुश्वारी पेश आई। लिहाजा उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार के घर स्क्रैप हुई एक मोटरसाइकिल ख़रीदी और इंजन में कुछ तकनीकी तब्दीलियां की, जिसके बाद ये मोटरसाइकिल पेट्रोल और बैटरी दोनों ही से चलाई जा सकती हैं। इनके इस कारनामे की हर तरफ सताइश की जा रही है और उन्हें क़दर की निगाह से देखा जा रहा है। शेख फ़िरोज़ का कहना है कि उन्हें ये गाड़ी बनाने में 17,000 रुपयों का खर्च आया है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि एक मियाद मुकम्मल हो जाने के बाद गाड़ियों को स्क्रैप करने से मुताल्लिक़ जो कानून है उसमें तरमीम की जाए और पूरी गाड़ी स्क्रैप करने की बजाय उसका सिर्फ इंजन स्क्रैप किया जाए और उसकी चेचिस और बॉडी को इस्तेमाल में लाने की इजाज़त दी जाए। एकदा मी माझ्या आईसोबत दवाखान्याला जात होतो आणि अचानक आमच्या बाईकचा पेट्रोल संपला, तर त्यामुळे आम्हाला खूप अडचण झाली आणि पेट्रोल पंप आमच्या तिकडून 2 ते 3 किलोमीटर दूर होतं। म्हणून मला अशी एक कल्पना आली की जर आपण या बाईकला पेट्रोल आणि इलेक्ट्रिक केलं तर आपल्याला फ्युचरमध्ये ही अडचण येणार नाही आणि मी एक इंजिनियर असल्यामुळे मी याच्यावर काम करण्यास सुरुवात केली आणि खूप अपयशानंतर एक 2-3 अटेम्प्ट केले, नंतर ही गाडी सक्सेस झाली। ही गाडी आमच्या एका नातेवाईकाकडे होती, त्यांनी ती स्क्रॅप केली होती कारण त्याला 15 वर्ष पूर्ण झालं। त्यांच्याकडून मी 3,000 रुपयाला घेतलं आणि याच्यावर काम करण्यास सुरुवात केली आणि टोटल या बाईकला बनवण्यासाठी मला 20,000 रुपये खर्च आला। एकदा चार्ज होण्यासाठी या गाडीला 3 तास लागतात आणि चार्ज झाली म्हणजे ही बाईक 20 किलोमीटरपर्यंत चालते आणि याचं रनिंग कॉस्ट जे आहे 20 पैसे पर किलोमीटर। तर या बाईकमध्ये 2 ऑप्शन आहेत, इलेक्ट्रिक मोड आणि पेट्रोल मोड। तर आपण इलेक्ट्रिकवर शिफ्ट केलं तर आपण इलेक्ट्रिकवर चालू शकतो आणि जर बॅटरी संपली तर आपण याला पेट्रोल मोडवर टाकू शकतो, म्हणजे आपली बाईक पेट्रोलवर चालते। माझी केंद्र आणि राज्य शासनाला विनंती आहे की त्यांनी जी स्क्रॅप पॉलिसी काढली आहे त्यामध्ये स्क्रॅप जे बाईक्स करत आहे तर त्यामध्ये पूर्ण बाईक न करता फक्त इंजिन स्क्रॅप करून जर आपण पूर्ण चेसिस आणि ॲक्सेसरीज यूज केली तर ज्या इलेक्ट्रिक बाईक्सच्या ज्या किमती वाढलेल्या आहेत तर त्यांच्या किमती काही प्रमाणात घटू शकतात। माझं नाव शेख अफरोज, मी BE मैकेनिकल। ताल्लुका सिल्लोड़ के वड़ोद चाथा गांव के रास्ते का दरमियानी पुल इंतहाई खस्ताहाल हो गया है। गांव वालों ने इस पुल की फौरी मरम्मत का मुतालबा मुतल्लिका महकमे से किया है। अंभई भराड़ी तालुका सिल्लोड़ के महज 13 किलोमीटर के रास्ते पर वाक़े वड़ोद चाथा गांव के नज़दीक नदी पर बने उस पुल की हालत इंतहाई मखदूश और खस्ता हो गई है, जिसके सबब उस पर से गुजरने वाले मुसाफिर व गाड़ी सवारों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस रास्ते पर से रोज़ाना हज़ारा गाड़ियाँ गुजरती हैं,
अक्सर बारिश में इस पुल का ऊपरी स्लैब बह जाने पर साकिनान ने नाक़िस दुरुस्ती व मरम्मत पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। फिलवक्त भी इस पुल पर रास्ते की जगह सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं और मुसाफिर व गाड़ी सवारों को जान का जोखम लेकर पुल अबूर करना पड़ता है। साकिनान व अवाम और राहगीरों ने मुतालबा किया है कि इस पुल की फौरी और पायदार मरम्मत की जाए, साथ ही पुल की ऊंचाई बढ़ाकर पुल के दोनों जानिब हिफाजती रेलिंग्स लगाई जाएं। वैजापुर से करीब समृद्धि हाईवे से मुत्तसिल एक्सप्रेस कैनाल में गिर जाने के सबब एक कॉलेज स्टूडेंट की मौत हो गई। महलूक का नाम सुहेल पठान बताया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक वैजापुर से करीब समृद्धि हाईवे से मुत्तसिल एक्सप्रेस कैनाल में हाथ पांव धोने के बाद कैनाल से बाहर निकलते वक्त अचानक सुहेल का पांव फिसल गया और कैनाल में गिरकर पानी के तेज़ बहाव के साथ वो बह गया। तफसीलात के मुताबिक सुहेल बेलापुर के एक कॉलेज में 12वीं जमात में तालीम हासिल कर रहा था। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका है, लिहाजा अपने अफराद ख़ानदान की किफ़ालत और ख़ुद के तालीमी अखराजात पूरे करने की गर्ज से वो गांव के दीगर बच्चों के साथ श्री रामपुर में मजदूरी के लिए जाया करता था। वैजापुर के संचेती फार्म पर खाद की गाड़ियां खाली करने का काम वो गुज़िश्ता कई दिनों से कर रहा था। गाड़ी खाली करने के बाद रोज़ाना वो दीगर मजदूरों के साथ एक्सप्रेस कैनाल जाता और हाथ पैर धोया करता। गुज़िश्ता रोज़ हस्बे मामूल वह कैनाल पर हाथ पांव धोने के बाद कैनाल से बाहर निकल रहा था कि उसका पांव फिसल गया और वो कैनाल में गिर गया, जहां पानी के तेज़ बहाव के साथ वो बहने लगा। उसके साथ वहां मौजूद हनुमंत पोरडे जो तैरना जानता था, उसने सुहेल को बचाने के लिए कैनाल में छलांग लगाई और उसे बचाने की कोशिश की, मगर वो कामयाब ना हो सका। लिहाजा देर रात गए वैजापुर पुलिस स्टेशन पहुंचकर हनुमंत ने उसकी मौत की खबर दर्ज करवाई, जिस पर डिप्टी डिवीज़नल ऑफिसर प्रजापति की रहनुमाई में पुलिस इंस्पेक्टर राजपूत ने जाए हादसा पर विजिट दी। इस मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात किशन गौली कर रहे हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही काने गाँव के सरपंच गीताराम खरात अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे। सुहेल के दीगर सभी मजदूर साथी, ट्रक का मालिक और ड्राइवर उसकी तलाश में मदद कर रहे हैं। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जायकवाड़ी इरिगेशन डिपार्टमेंट के अफसरान ने बढ़ाया म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर का दर्द-ए-सर। पानी के बकाया बिल के 26 करोड़ रुपए की अदायगी के लिए शहरियान का पानी सप्लाई मरहलावार बंद करने का दिया इंतबाह। ताल्लुका सिल्लोड़ के लेहाखेड़ी ग्राम पंचायत में पेश आया बदनवानी का अनोखा खेल। महलूक शख्स को ईजीएस मजदूर बताकर उसके नाम पर उठा लिया गया बोगस बिल। समाजी कारकुन का इल्जाम, जांच का मुतालबा। आखिर हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो हमें जहन्नम जैसी तकालीफ पहुंचाई जा रही हैं? पड़े गांव के साकिनान का एएमसी इंतजामिया से सवाल। प्रोसेसिंग सेंटर के सामने मुर्दा जानवरों के अजसाम ठिकाने लगाने के लिए शमशान बनाने से आवाम नाराज। और भारत की इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के लिए शाजापुर का होनहार खिलाड़ी शेख आदिल मुंतखब। अजीज़ व अकारिब में खुशी की लहर। दौलताबाद में किया गया अवामी इस्तकबाल। भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमों के दरमियान होगा मुकाबला। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। मैं ज़की सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।